A very good morning to all of you. Myself, Professor Yasir Beg from Sagar Group of Institutions, Systec Taluk Bhopal. And as you all know, we have been undergoing the course of Engineering Thermodynamics, and in this course we have already seen a couple of lectures in which we have we have already seen couple of lectures in which we have already seen what basic thermodynamic principles are, what are the basic laws on which the thermodynamic world depends, and then we have also seen what a pure substance is in the unit 2 and the rest of the things that are associated with pure substance, that is steam table and your Moeller charts. And now in this third unit we are seeing currently all the historical cycles that have been used for the constructions of thermal heat engines. And we have already seen many cycles which are very popular, for example Carnot cycle, diesel cycle, Otto cycle, and today's topic will be the other historic cycles which are not that much popular, but they have their historical significances in the development of thermodynamic engines. Okay, so let's start. Yes, previously. So previously what we have seen in this unit, we have seen what a power cycle is, and we have seen that what the definition of power cycle is and types of power cycles, right? The power cycle are those cycles in which the heat is provided and the work is delivered by the engine. So a heat engine works on power cycle, and then the power cycle, there are two types, that is air cycle and gas cycle, and then vapor cycle. So in this unit we have been undergoing what the gas cycle is, right? In the gas cycle, by which I mean that the working fluid in this is purely gas. Okay. Next we have seen what the air standard assumptions is, and what the Carnot cycle is, what Otto cycle is, diesel cycle, fuel cycle, Brayton cycle. All these cycles we have seen in our previous lectures. Okay, these cycles only differ based on what processes they are following during the whole completion of the cycle. For example, Carnot cycle, it was having 4 processes, it was consisting of 4 processes, and the two were thermal heat addition and heat rejection, and then adiabatic compression and adiabatic expansion. In Otto cycle we have seen that the compression and expansion remained adiabatic, but the heat addition and heat rejection was taking place at constant volume. In diesel cycle what we have seen that the heat addition was changed from constant volume to constant pressure, and rest of the 3 processes were in diesel cycle were exactly same as that of Otto cycle. Then came dual cycle. Dual cycle was the combination of Otto and diesel. That means that in dual cycle the heat addition was taking place partially on constant volume and partially on constant pressure, right? So it was a combination of these two, Otto cycle and diesel cycle. Then later on we have seen that Brayton cycle. Brayton cycle, I told you that it is used in aeroplane engines, and it works on open loop. And here what we have a different combustion chamber. That means that we have been compressing air in a different section, compressor, and then the compressed air was sent to a different chamber where the combustion process was taking place. So this was the Brayton cycle. And in the last lecture what we have seen is, we have seen the comparison between Otto cycle, diesel cycle and dual cycle, and in that comparison we have said that we will be taking some of the parameters constant. Okay, that means that we are fixing some parameters like compression ratio, heat addition, heat rejection, power developed. So those are the parameters, and some of them we were fixing, and then we were trying to find out that what were the efficiency comparison between these 3 cycles, right? So we have seen that the dual cycle efficiency was always lying between Otto cycle and diesel cycle, and we have also seen that whenever the compression ratio was fixed, that means the compression ratio was same between all these cycles, then our Otto cycle was giving the best efficiency among all these 3. And whenever the compression ratio was changed, okay, then obviously diesel cycle was requiring the much more compression ratio than Otto cycle, and that is why its efficiency was always greater if the compression ratio was
greater. Okay, so now moving on with our today's class. Other cycles. I have told that we are going to study the other historical cycles that have been developed throughout the ages, and these are the 4 other historical cycles that are popular, known as the Stirling cycle, Ericsson cycle, Atkinson cycle, and Lenard cycle. So let's see what these cycles are and how they work in the closed loop. Okay. Yes, first among these are Stirling cycle. So let me now switch from the English to Hindi now. Stirling cycle is actually a cycle which this is the first cycle that we are encountering right now, which is not going to have an adiabatic and an compression and an adiabatic expansion. मतलब ये कि अभी से पहले जितनी भी हमने साइकिल्स देखी हैं, बी इट कार्नोट साइकिल, बी इट ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, उन सारी साइकिल्स के अंदर एक चीज़ कॉमन थी. वो चीज़ क्या थी कि हमने ये देखा था कि जो कंप्रेशन हो रहा था और जो एक्सपेंशन हो रहा था, दैट वाज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट, दैट वाज टेकिंग प्लेस एट एडियाबैटिकली. ठीक है, तो यानी कि उसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही थी ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक एंड ड्यूरिंग द एक्सपेंशन स्ट्रोक. बट नाउ दिस इज द फर्स्ट साइकिल दैट वी आर एनकाउंटरिंग जिसके अंदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन अब एडियाबैटिकली नहीं होगा. ठीक है, तो वी विल सी कैसे होगा, बट एडियाबैटिकली नहीं होगा. दिस यू शुड नो. ओके, नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर दैट इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द साइकिल. It is the modified form of Carnot cycle actually. यहाँ पे one of the modified form of Carnot cycle it is to produce a higher mean effective pressure. Yes, it is used to produce a higher heat mean effective pressure. What is mean effective pressure? Okay, so let me tell you what is mean effective pressure. अब अगर आप यहाँ देखेंगे इस डायग्राम के अंदर, PV डायग्राम में, तो देखिएगा ड्यूरिंग द होल साइकिल, ड्यूरिंग द होल एक्सपेंशन स्ट्रोक, दिस प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग. यहाँ पे 0.3 के ऊपर ये एक मैक्सिमम प्रेशर है सिलेंडर का, एंड यहाँ देखेंगे आप तो 0.4 के ऊपर ये एक मैक्सिमम प्रेशर है सिलेंडर का. ठीक है, 0.1 के ऊपर ये एक मैक्सिमम प्रेशर है सिलेंडर का. तो आप देख रहे हैं कि सिलेंडर का प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है. ठीक, तो अगर सिर्फ मैं एक्सपेंशन स्ट्रोक को ध्यान में रख करके बात करूं, सिर्फ इस स्ट्रोक को 3 to 4, अगर सिर्फ एक्सपेंशन स्ट्रोक को ध्यान में रख के बात करूं, और मैं ये जानना चाहूँ कि कितना वर्क आउटपुट हुआ इस स्ट्रोक के अंदर. ठीक, तो आपको याद होगा कि हम वर्क आउटपुट कैसे निकालते थे. वर्क आउटपुट निकालते थे कि इस लाइन के नीचे और इन 2 लिमिट्स के बीच में जितना एरिया है, वो एरिया को अगर आप कैलकुलेट कर लेते थे तो आपको पता चल जाता था कि कितना वर्क डन हुआ होगा. राइट, ये एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लेते थे तो आपको पता चल जाता था कितना वर्क आउटपुट मिला होगा आपको. लेकिन आपको याद होगा कि ये जो वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है PdV. राइट, PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV. अब यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यूसली वेरी होता जा रहा है ना. अगर जो है एक कांस्टेंट प्रेशर होता, मैं अब अजम्पशन ले रहा हूँ कि अगर एक ऐसा कांस्टेंट प्रेशर होता है जिसने कहीं इन दोनों के बीच में एक कोई वैल्यू बना करके रखी होती, नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर बट समवेयर इन बिटवीन, जिसको अगर इसी 2 सेम लिमिट के अंदर अपन इंटीग्रेट करते तो वो सिंपल दिस विड्थ इनटू हाइट, मतलब वो प्रेशर क्योंकि विड्थ इनटू हाइट से एग्जैक्टली सेम एरिया देता है जो कि अपने इस पूरे फिगर के अंदर आया था. आप कहेंगे कैसे एग्जैक्टली सेम देता है, ये एरिया देखो, ये एरिया माइनस हो रहा है जबकि ये एरिया ज़्यादा था आपके ओरिजिनल फिगर में. अब अगर मैं ये कहूँ कि ये एरिया ज़्यादा था ओरिजिनल फिगर में, तो यहाँ देखिए ये एरिया ओरिजिनल फिगर में नहीं था लेकिन यहाँ पे ऐड हो रहा है. तो इफ दिस subtracted area will be equal to this newly added area, then this constant pressure can be assumed as the pressure which was acting throughout the expansion stroke. यानी कि एक्सपेंशन स्ट्रोक के अंदर हमें मालूम है कंटिन्यूसली प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा प्रेशर अज्यूम कर सकते जो कि कांस्टेंट रहता थ्रू आउट दिस एक्सपेंशन स्ट्रोक और उस प्रेशर के दौरान सेम वर्क आउटपुट मिला होता, तो वो प्रेशर क्या कहलाता, मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाता. तो कार्नोट साइकिल के अंदर मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी लो था, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने हायर मीन इफेक्टिव प्रेशर को प्रोड्यूस करा. राइट,
यानी कि आपकी स्टर्लिंग साइकिल का अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट ये है कि यहाँ पर कार्नोट साइकिल के कंपैरिजन में हायर मीन इफेक्टिव प्रेशर को अचीव करा जाता है, राइट। बिकॉज अगर आप एडियाबैटिकली देखें तो एडियाबैटिकली इसको ऐसे आना था, राइट। एडियाबैटिकली ऐसे आ रहा होता और ऐसे आ रहा होता तो ऑब्वियसली इसके नीचे का एरिया जो है वो कम निकल कर आता, ठीक। तो दैट वाज आवर what do we call first point of this Stirling cycle. Then moving on, हमने देखा कि यहाँ पर ये जो 4 प्रोसेसेस हैं ये भी 4 प्रोसेसेस से कंसिस्ट करती है ये साइकिल, और इसके अंदर प्रोसेस 1 से 2 हमेशा जो कि एडियाबैटिक कंप्रेशन होता था, यहाँ पे 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन ना होकर के कौन सा कंप्रेशन दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एडियाबैटिक नहीं बल्कि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, राइट। आइसोथर्मल कंप्रेशन के बाद ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और कौन सी साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन देखने को मिली थी हमें? तो यस, हमें जो है और ऑटो साइकिल के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन देखने को मिली थी। देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता था वहाँ पर, यहाँ पे एडियाबैटिक ना होकर के आइसोथर्मल हो रहा है, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में होता था, यहाँ पे भी हुआ। तो आप देखेंगे तो इसके दो प्रोसेसेस जो हैं ऑटो साइकिल की तरह हैं, यानी कि हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जस्ट सिमिलर टू that of auto cycle, but here the compression and expansion process, this compression and this expansion process, they were taking place adiabatically in auto cycle, whereas they are taking place isothermally in this Stirling cycle. Okay, तो यहाँ पे यही लिखा है कि it consists of 2 isothermal and 2 constant volume processes. ठीक, the heat rejection and heat addition was taking place at constant temperature. यहाँ पे constant temperature पे हो रहा है, जबकि वहाँ पे constant मतलब heat addition 0 रहता था या heat rejection 0 रहता था, ठीक है, adiabatic होता है। तो दिस वाज द पीवी डायग्राम एंड नाउ टीएस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो टीएस डायग्राम के अंदर ये देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रोसेस 1 से 2 आइसोथर्मल है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पर ये देखिए whereas constant volume cycle, sorry, constant volume process, constant volume ये आपका compression and constant volume ये आपका expansion, ठीक है, सॉरी constant volume heat addition and constant volume heat rejection। चलिए नेक्स्ट तो देखते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले ये कह रहे हैं कि द प्रोसेसेस दैट आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन दिस स्टर्लिंग साइकिल आर एज फॉलोज। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि द एयर इज गोइंग टू बी कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। तो एयर जो कि वहाँ पे एडियाबैटिकली कंप्रेस होती थी उसको आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे, ठीक, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, अभी देखा हमने, राइट। उसके बाद ये कह रहे हैं द एयर एट स्टेट 2 इज पास्ड इनटू द रीजनरेटर। यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। द एयर इज पास्ड फ्रॉम पॉइंट 2 इनटू द रीजनरेटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टेम्परेचर T1, ठीक। ये कह रहे हैं द एयर पासिंग थ्रू द रीजनरेटर मैट्रिक्स गेट्स हीटेड फ्रॉम TL टू TH। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपने जो कंप्रेशन करा था आइसोथर्मल, यहाँ तक कर दिया था, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन था कंप्रेशन चेम्बर के अंदर। ये अगर पिस्टन सिलेंडर है तो यहाँ पे आपने ये कंप्रेशन करके आप पिस्टन को यहाँ तक ले आए थे और यहाँ तक कंप्रेशन हो चुका था। हमें मालूम है प्रीवियसली क्या होता था, यहाँ पे बर्निंग करके आप आग लगा देते थे और जो है हीट ऐड होती थी, जबकि अब ये कह रहे हैं कि हीट ऐड कैसे कराएंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐड कराएंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे ऐड कराएंगे? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, आप इसको कॉइल लपेट देंगे, बहुत ही ज़्यादा हीटिंग कॉइल लपेट देंगे, ठीक है। या आप जो है इस एयर को जो कि आप कंप्रेस कर चुके हैं उसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद एक दूसरे मैट्रिक्स में से इसको सर्कुलेट कराएंगे जिसे हम रीजनरेटर कहेंगे, और ये रीजनरेटर मैट्रिक्स में से सर्कुलेट होकर कर आएगी और हीट अप होकर के वापस इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आपने पिस्टन को इतनी देर तक यहाँ पे स्टॉप करके रखा जितनी देर के अंदर ये यहाँ से गई और जा करके यहाँ से हीट अप होकर कर और यहाँ से वापस आ गई, ठीक है। तो दिस वाज द हीट बीइंग एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज व्हाई द पिस्टन आई सेड दैट इज नॉट मूविंग, पिस्टन इज ऑलरेडी स्टैंडिंग है ना। मैंने कहा ना पिस्टन इज स्टैंडिंग है, आपको दिख रहा है क्लियरली, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ये जो है ये यहाँ से जा रहा है और जा करके और हीट ऐड करा करके रीजनरेटिव मैट्रिक्स में से
और वापस आ जाता है, एंड देन जब ये वापस आ जाता है तो अब ये हाई टेम्परेचर पे भी है और हाई प्रेशर पे भी है। ओके, एंड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होने की वजह से इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ अब जो है एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, जो कि एक्सपेंशन प्रोसेस 3 से 4 यानी कि आपका वापस आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा। तो यहाँ पे यही कहेंगे कि द एयर एट स्टेट 3 एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। यस, देखिए मैंने कहा था एयर एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इन द सिलेंडर अंटिल इट रीचेस टू स्टेट 4। फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होकर के ये स्टेट 4 तक पहुंचेगा। देन नेक्स्ट इज द एयर कमिंग आउट ऑफ द इंजन एट टेम्परेचर TH कंडीशन 4 एंटर्स इनटू द रीजनरेटर फ्रॉम द बॉटम एंड गेट्स कूल। तो अभी क्या हुआ था, अभी ये हुआ था कि यहाँ से जो आपने एयर ये आई थी और फिर आपने इस प्रोसेस के दौरान 2 से 3 के दौरान इसको रीजनरेटर में भेजा था, रीजनरेटर ने इसे हीटअप करा था। तो एट द एंड जब रीजनरेटर ने इसे हीटअप करा था तो रीजनरेटर कूल डाउन हो गया था। अब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से अपन फिर से एयर को बाहर निकालेंगे और दोबारा रीजनरेटर में भेजेंगे, और इस बार क्या करेंगे, इस बार इस एयर को कूल डाउन कराएंगे, इस एयर का टेम्परेचर कम कराएंगे और क्या करेंगे, और इसी दौरान जो रीजनरेटर है, रीजनरेटर का टेम्परेचर वापस बढ़ा देंगे आप, राइट। तो यहाँ पे 2 टेम्परेचर सोर्सेज हैं, एक हाई टेम्परेचर सोर्स है, एक लो टेम्परेचर सोर्स है, और आप क्या कर रहे हैं यहाँ से जो है अब इसको हीट रिजेक्ट करा रहे हैं। हीट रिजेक्ट कैसे करा रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो अगेन समझ में आने वाली बात है कि पिस्टन यहाँ पर भी मूव नहीं करेगा, पिस्टन यहाँ पर भी स्टेडी खड़ा रहेगा, और जो आपका रीजनरेटर है ये गैस को निकाल करके रीजनरेटर में भेजा जाएगा। ये रीजनरेटर मैट्रिक्स से सर्कुलेट होकर और ये अपनी हीट जो है उसे लूज करके, ठीक, और ये हीट लूज करके वापस आ जाएगी, ठीक है। और जब ये वापस आएगी तो इसका प्रेशर भी डाउन हो चुका होगा, इसका टेम्परेचर भी डाउन हो चुका होगा, बट इसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम सेम रहेगा, राइट। चलिए, तो ये यही कहना चाह रहे थे कि दिस थिंग गेट्स कूल डाउन, दिस थिंग गेट्स कूल डाउन व्हाइल पासिंग थ्रू द रीजनरेटर मैट्रिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कम्स आउट एट टेम्परेचर ऑफ TL। तो अब जो है ये T लो हो जाता है, यानी कि अब एयर का टेम्परेचर लो हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो रीजनरेटर को हीटअप करके वापस आई है ना, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गई है, एंड द साइकिल गेट्स रिपीटेड, साइकिल जो है वापस रिपीट होने लगेगी। लास्टली इन्होंने बताया हमें, लास्टली क्या बताया कि इट कैन बी शोन दैट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द एयर फ्रॉम द रीजनरेटर मैट्रिक्स ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 से 3 इज इक्वल टू द हीट गिवन बाय द एयर to the regenerator matrix during the process 4 to 1. Then the exchange of heat with external sources will only be during the isothermal process. ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान जो हीट ऐड हुई है और इस प्रोसेस के दौरान जो हीट रिजेक्ट हुई है, आप ये शो कर सकते हैं कि ये दोनों प्रोसेस के दौरान जितनी हीट ये आपने यहाँ पे देखी है TDS ना, ये हीट जो कि आपने एक्स्ट्रा इसने रिजेक्ट करी है और ये हीट जो कि आपने ऐड कराई थी, ये दोनों जो हैं ये दोनों सेम रहेंगे। इसीलिए इक्वल अमाउंट के अंदर यहाँ पे जितनी हीट आपने ऐड कराई थी इस प्रोसेस के दौरान रीजनरेटर को गर्म करने के, रीजनरेटर से एयर को गर्म करने के लिए, और यहाँ पे जितनी हीट रिजेक्ट हुई रीजनरेटर को वापस गर्म करने के लिए, तो वो दोनों सेम रहेंगे। ओके, तो दैट इज आवर स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल के बाद नेक्स्ट आता है आपका एरिक्सन साइकिल। एरिक्सन साइकिल की बात करें तो एरिक्सन साइकिल वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट नेम हुज नेम इज जॉन एरिक्सन। जॉन एरिक्सन ने जो है एक और साइकिल बनाई थी, बहुत ही पॉपुलर साइकिल, जिसको हम ब्रिटन साइकिल के नाम से जानते हैं। और एरिक्सन साइकिल जो है एक्चुअली इसका कोई प्रैक्टिकल इंजन नहीं बन पाया है एरिक्सन साइकिल के ऊपर, और इन्होंने जो है इसके अंदर भी इन्होंने कुछ हीट एक्सचेंजर्स का यूज़ करा था, कुछ रीहीटर्स का यूज़ करा था, कुछ इंसुलेटर्स का यूज़ करा था। हम देखेंगे कि इनके चारों प्रोसेसेस जो हैं वो किस तरीके से रहते हैं। इनफैक्ट इनके 4 प्रोसेसेस नहीं होते, इनके प्रोसेसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और सॉरी, इसके 4 प्रोसेसेस होते हैं, नेक्स्ट के ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो नाउ द 4 प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एरिक्सन साइकिल इज first is isothermal compression, which was same as that of Stirling cycle. Then isobaric heat addition instead of isoporic. Instead of constant volume, here pressure is constant during the heat addition process. Then isothermal expansion, just same as Stirling cycle, and then isobaric heat removal. Okay. तो ये 4 प्रोसेसेस क्लियरली आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा होगा, यानी कि आपका जो है यहाँ पे आइसोथर्मली हीट ऐड कराई जा रही है,
यहाँ पे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर पे सॉरी आइसोथर्मली कंप्रेस कराया जा रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपका कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपका हीट एडिशन हो रहा है, आइसोथर्मली जो है एक्सपेंशन हो रहा है, एंड देन कांस्टेंट आपका व्हाट डू वी कॉल प्रेशर के ऊपर अगेन हीट रिजेक्शन हो रहा है। ये आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस है और ये आपका हीट एडिशन प्रोसेस है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, वेयर एज दीज टू आर कांस्टेंट प्रेशर। ओके, next is Atkinson cycle. I'm going a little fast here in these cycles because they are not mathematically important to us, they are just historically important. That is why we are going a relative fast during these cycles, during the study of these cycles. So Atkinson cycle की बात करें, Atkinson cycle is also a type of internal combustion engine. इसके ऊपर प्रैक्टिकल इंजन बनाए थे एटकिंसन ने, एंड इन्होंने टोटल 3 इंजन्स बनाए थे, 3 मॉडल बनाए थे जो कि एटकिंसन साइकिल पे वर्क करते थे, जो कि एक दूसरे का इम्प्रूवमेंट है। The Atkinson cycle is designed to provide the efficiency at the expense of power density. This is the new term, power density. अब power density क्या होती है? तो power density is the power that is being produced, that is energy per second that is being produced divided by volume, divided by volume of the what do we call volume of the substance, working substance. So ये कह रहे हैं कि एटकिंसन साइकिल ने क्या करा था, एटकिंसन साइकिल ने आपको अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड करी थी, और अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड किस खर्चे पे करी थी? तो इन्होंने जो है पावर डेंसिटी के खर्चे पे करी थी, यानी कि अब कम मास ऑफ एयर उतना पावर नहीं देगा, यानी कि सेम मास ऑफ एयर कम पावर देगा। सीधी सी बात। पावर डेंसिटी क्या बता रहा है? पावर डेंसिटी बता रहा है कि पहले आप जितना मास ऑफ एयर डालते थे वो जितना पावर देता था, अब उतना पावर चाहिए तो ज़्यादा मास ऑफ एयर आपको अंदर डालना पड़ेगा। दिस इज द पावर डेंसिटी, ठीक है। बट इन्होंने क्या करा था, एफिशिएंसी बढ़ा ली थी। ओके, तो एटकिंसन साइकिल वाज एफिशिएंट, हाउएवर इट्स लिंकेज वाज टू डिफिकल्ट फॉर बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई एटकिंसन साइकिल के अंदर। इनके जो इंजन्स जो डेवलप हुए थे, और इंजन के अंदर एक्चुअली क्या होता था कि आपका कंप्रेशन स्ट्रोक जो है छोटा होता था और एक्सपेंशन स्ट्रोक बड़ा होता था, इसीलिए आपको पावर जो है वो ज़्यादा अमाउंट के लिए मिल रहा होता था, जबकि आपको कंप्रेशन बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए करना पड़ रहा था, राइट। तो यही एक रीज़न था कि इनका जो लिंकेज था, जो कि लिंक्स बनाए गए थे, वो सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नहीं था, बल्कि पिस्टन के साथ साथ और भी लिंक्स इन्होंने जोड़े थे, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा अरेंजमेंट था। एंड उस कॉम्प्लिकेटेड से अरेंजमेंट के अंदर अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम बहुत आ रही थी, यानी कि बैलेंस नहीं हो रहे थे, तो वाइब्रेशन बहुत जनरेट हो रहे थे ड्यूरिंग द हाई स्पीड ऑपरेशन। जैसे ही स्पीड बढ़ाते थे आप, तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते थे इनके इंजन्स के अंदर। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। द मोस्ट कॉमन थ्रेड थ्रू आउट एटकिंसन डिजाइन इज दैट द इंजन हैव एन एक्सपेंशन स्ट्रोक दैट इज लॉन्गर देन द कंप्रेशन स्ट्रोक। यही बात मैंने आपसे अभी करी कि इंजन का जो एक्सपेंशन स्ट्रोक होता था, एक्सपेंशन स्ट्रोक हमेशा बड़ा होता था कंप्रेशन स्ट्रोक से, तो ये उसका मेन फायदा था। एंड बाय दिस मेथड द इंजन अचीव्स ग्रेटर थर्मल एफिशिएंसी देन अ ट्रेडिशनल पिस्टन इंजन। तो इसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती थी, बिकॉज वर्क आउटपुट बढ़ रहा है और वर्क इनपुट कंप्रेशन करने के लिए जो वर्क सप्लाई करना पड़ रहा है वो वर्क कम हो गया है। ओके, दिस इज द आइडियल एटकिंसन साइकिल रिप्रेजेंटेशन। एंड यहाँ आप देखें तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि 6 प्रोसेसेस के अंदर होता है, जिसके अंदर से सबसे पहला प्रोसेस जो है आपका यहाँ से चालू होता है पॉइंट 1 से। पॉइंट 1 से 2 आप देखें तो कैसा है कि आपका अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन है, जिस तरह से आपका ऑटो साइकिल में होता था, ठीक। अगर मैं इसको डुअल साइकिल से कंपैरिजन करने जाऊं तो आप देखिएगा कि डुअल साइकिल के अंदर एडियाबैटिक कंप्रेशन होता था, यहाँ भी हुआ। देन हीट एडिशन पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती थी एंड पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर पे होती थी, यहाँ पर भी हुई। एंड देन एक्सपेंशन जो है एडियाबैटिकली होता था, यहाँ पर भी हुआ। लेकिन डुअल साइकिल हो या ऑटो साइकिल हो, उसमें जो एक्सपेंशन होता था वो इस पॉइंट के ऊपर आकर के रुक जाया करता था, राइट। तो इसीलिए हम ये कहते थे एक्सपेंशन स्ट्रोक इज इक्वल टू कंप्रेशन स्ट्रोक के। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जितना वॉल्यूम में चेंज आया, क्योंकि कंप्रेशन इतनी वॉल्यूम के अंदर हुआ था, उतना ही एक्सपेंशन स्ट्रोक
आपको आया होगा, बट इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन जो है वो एक्सटेंड कर देता है ड्यू टू लिंकेजेस। इसके लिंकेजेस इस तरीके से बनाए कि जब ये एक्सपेंशन करने जा रहा होता है तो ये और ज़्यादा पिस्टन मूव होता हुआ चला जाता है टुवर्ड्स द बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर और नीचे आता है इसका, तो ये और एक्सपेंड होता हुआ जाता है इसी तरीके से आपका एडियाबेटिकली, और ये किसी एक पॉइंट पे पहुंचता है 0.5। उसके बाद फिर ये वही आइसोकोरिकली या कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट रिजेक्ट करता है। एंड हीट रिजेक्ट करने के बाद अब आप क्या कराते हैं, इसकी जो है वापस से कूलिंग कराते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई था, और आप इसकी आइसोबारिक कूलिंग कराते हैं, यानी प्रेशर यही सेम रखना है। ठीक है, तो जो आप ये प्रोसेस गिरा रहे थे, ये प्रोसेस जो आप गिरा रहे थे आपके ऑटो साइकिल में, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल में, अब ये प्रोसेस ना गिरा करके आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट कराते हैं, और फिर यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट रिजेक्ट कराते हैं, और इसका टेम्परेचर को वापस से आप अपने 0.1 के ऊपर लेकर आते हैं। जब तक वॉल्यूम 0.1 हो जाती है तब तक टेम्परेचर भी 0.1 हो जाता है, एंड अगेन साइकिल अगेन कंटिन्यूज, राइट। तो इसके अंदर ये 6 प्रोसेसेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक एटकिंसन साइकिल के अंदर। तो सिंपल सी बात है, इसके कुछ पॉइंट्स जो कि रिमेंबर करने लायक हैं वो क्या हैं, ये हैं कि भाई इसके अंदर पावर डेंसिटी जो है वो बहुत कम रहती है, इस वजह से इसकी एफिशिएंसी एक नॉर्मल जो आपका ऑटो साइकिल है उससे काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर लिंकेजेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है एट हाई स्पीड ऑपरेशन। तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू एक्सपेंशन स्ट्रोक, जिसकी वजह से आपका वर्क आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, जबकि वर्क इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन इज लेस। ओके, सो दिस वाज आवर एटकिंसन साइकिल। एटकिंसन साइकिल। लास्टली लेनॉर साइकिल, ये आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट साइकिल है लेनॉर साइकिल। लेनॉर साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। इसमें सिर्फ 3 प्रोसेस होते हैं इंटरेस्टिंगली। अभी तक आपने जो देखे थे 4 या 4 से ज़्यादा जब प्रोसेस हो रहे थे तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही थी, लेकिन आपको याद होगा जब थर्मोडायनेमिक बेसिक को हम पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट, तो हमने ये डिस्कस करा था कि एक क्लोज्ड साइकिल होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो चाहिए होते हैं वो 3 चाहिए होते हैं। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर ही वर्क कर रहा है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं। आपका ये सब 4 पॉइंट लिखे हुए, लेकिन चौथा पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, नो कंप्रेशन प्रोसेस, राइट। तो मतलब ये है कि आपका यहाँ पर 3 प्रोसेस के अंदर पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहला जो प्रोसेस है आपका ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन का मतलब है कि आपने क्या करा है, यहाँ से सीधे इसमें मतलब पिस्टन जो स्टार्ट हुआ वो टॉप डेड सेंटर से ही स्टार्ट हुआ, और सीधा आपने क्या करा, हीट ऐड कराई, यानी कि बर्निंग करा दी। बर्निंग कराने के बाद जब इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद इसने एक्सपेंशन प्रोसेस करा जो कि एडियाबेटिकली करा, और आपने एडियाबेटिकली इसका एक्सपेंशन कहाँ तक हो जाने दिया, जब तक इसका प्रेशर ड्रॉप हो करके इसके ओरिजिनल प्रेशर तक नहीं आ गया। ठीक है, यहाँ तक इसका आपने प्रेशर ड्रॉप कराया, और प्रेशर जब इस प्रेशर तक वापस पहुँच गया इनिशियल प्रेशर तक, तो आपने यहाँ पे इसे रोक लिया, और अब जो भी इसके अंदर हीट बाकी थी आपने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसकी हीट को बाहर रिजेक्ट करा दिया। दिस वाज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, जिसकी वजह से आपका प्रेशर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कम नहीं करना पड़ा। अदरवाइज अगर इसको याद करेंगे आप तो आपको क्या करना पड़ रहा होता था, ये जब यहाँ से एक्सपेंड होकर आता था उसके बाद यहाँ से आप इस तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन कराते थे, और फिर आपको कंप्रेशन करके इसको यहाँ तक लेके जाना पड़ता था, क्योंकि आपको प्रेशर को चेंज करना होता था, राइट। लेकिन अब यहाँ पे देखें आप, तो आपने ये इस प्रोसेस को प्योरली गाया भी कर दिया है। आपने क्या कहा, आपने कहा कि मैं इसको सिर्फ आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड कराऊंगा। आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड कब तक कराऊंगा, जब तक कि इसका प्रेशर ड्रॉप होते होते मेरे ओरिजिनल इनिशियल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। जैसे इनिशियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो अब जो भी इसमें हीट बची है वो हीट को मैं कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन के जरिए निकाल दूंगा, यानी कि कूलिंग करा लूंगा, बट जो है कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 प्रोसेस के अंदर ही आपकी साइकिल टोटली कंप्लीट हो जाती है। एंड सिमिलरली आप टीएस डायग्राम के ऊपर भी देख सकते हैं। टीएस डायग्राम के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तो टेम्परेचर आपको क्लियरली बढ़ता हुआ नजर आया। देन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो यह देखिएगा आपको यहाँ पे जो है आपको अगेन कांस्टेंट एंट्रोपी यानी कि हीट एडिशन कुछ भी नहीं हुआ है, ना हीट रिजेक्शन कुछ हुआ है, एडियाबेटिक प्रोसेस रहा है।
लेकिन उसके दौरान आपके टेम्परेचर में गिरावट नज़र आई है, यानी क्लियरली एक्सपेंशन हुआ होगा। ठीक है, और एक्सपेंशन के बाद आपने देखा तो यहाँ पे आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन करा है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हुई है, इसीलिए जो है प्रेशर में ड्रॉप देखने को मिला, प्रेशर कांस्टेंट देखने को मिला, जबकि टेम्परेचर में आपको क्लियरली ड्रॉप देखने को मिल रहा है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। सो दिस वाज योर Lenard cycle. Lenard cycle consists of the minimum number of processes that are required in order to complete a cycle. तो Lenard cycle इकलौती साइकिल है जिसके अंदर आपको 3 प्रोसेस के अंदर ही साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो these were the cycles जो कि अगर historical significance रखती थी। Usually these cycles are not discussed in the class, but since we are doing this online, so I thought that maybe I should give an overview of the other historical developments that took place during the ages. And now, in our next class, what we will do is we will study the different types of gas mixtures and how the gases behave when they are mixed with each other. Okay, and then we will finish up this unit. So that's it for today, and thank you very much for watching.